सबको नमस्कार। आज एक शुभ दिन है क्योंकि दर्शना हाई सेकेंडरी स्कूल के हिंदी मंच का उद्घाटन समारोह संपन्न होने वाला है। हम सबको मालूम है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वह विश्व भाषा का पद पर उभर रही है। भारत के सभी प्रांतों में हिंदी की बोलबाला है, वह पढ़ने लिखने और समझने में बहुत आसान है। इसलिए हम सबको अच्छी मन से हिंदी का अध्ययन करना चाहिए। इस समारोह का शुभारंभ एक प्रार्थना से करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर दा हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर दा हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारी दर्शना के उन्नति और प्रगति के लिए आज भी दिए के तरफ मार्ग दिखाने वाले दो महत्व व्यक्ति हैं, श्री शशिधरन नायर सर और श्रीमती मोहनकुमारी अम्मटी सर। दोनों उनको सादर प्रणाम। दर्शना में भी पढ़कर पढ़ाई के साथ साथ कला, साहित्य, खेलकूद आदि क्षेत्रों में सक्रियता से भाग ली। कला प्रतिभा, स्कूल लीडर, अब हमारी प्रधान अध्यापिका के रूप में सदैव हमारे साथ मिलकर स्कूल की और छात्रों की प्रगति के लिए कार्यरत श्रीमती रागिंदु जी को बड़ी आदर के साथ हिंदी मंच के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करती हूँ। A very good morning to all Darshanites. Extracurricular activities render an opportunity to correlate academic skills with a real-world context. Featured and creative curriculum facilitate children to learn better social skills, critical thinking, and teamwork. Yes, there is a great significance and importance of club activities in schools. Academic education is incomplete without co-curricular club activities. It benefits the students in multiple ways. It makes students more qualified, enough confident, as well as a capable person who can lead a situation. So, today, we are here for the inaugural function of our school's Hindi Club. The purpose of the Hindi Club is to enhance the creativity of our students. The club allows students to create their own speeches, plays, poetry, write essays to express their thoughts and feelings. The Hindi Club is formed to work for the progress of Hindi language, to create interest in the students for the language, and to encourage their creativity in oral and writing skills. The club helps in inculcating a sense of pride about an Indian language
and understand the importance of our national language, Hindi, and also helps in preparing students to excel in various district and national level competitions and events. We all know culture is a summation of all the experience the human race has gathered over the past centuries. At present phase of human civilization, a majority of young generation relate the word culture with anything that is worn out and perhaps a symbol of boredom. The younger masses tend to forget that we all are an integral part of this culture and heritage which India possesses in abundance. We all are Indians, and Hindi has been a link between various sections of society over centuries. But due to the influence of Western culture, it is rapidly losing its importance. Students find it very irrelevant to study a language which in modern human civilization has limited application. Thus, clubs have turned out to become an integral part of students' life. Dear students, as you all know, the situation created by COVID-19 pandemic has limited all the celebrations to online functions. So, dear students, with all your permission, I am inaugurating the Hindi club of our school. I would love to express my sincere gratitude to all the coordinators and members of this club for organizing such a great function. Thank you everyone. Stay safe, stay healthy and be happy. आपने जो कहा है वह हमारे लिए बहुत अनमोल है। धन्यवाद जी। कविता सबको पसंद है ना? आओ देवी सांद्रा की एक कविता सुनिए। नमस्कार, मैं देवी सांद्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य जगत की उभरती कवि पुष्पेंद्र उपाध्याय की कविता शस्त्र उठा लो द्रौपदी अब कृष्ण न आएंगे कहना चाहती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्त्रियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि समय आ गया है, उन्हें इनका जवाब पत्थर से देना होगा, अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। सुनिए एक कविता। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। शद्रांश भी छाए बहटे शकुनी, मस्तक सब भीग जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण न आएंगे। इस युग में कृष्ण का इंतजार ना करो द्रौपदी, घोर कलयुग की है ये 21वीं सदी। यहाँ तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आंसू से नहीं अंगारों से अपनी आंखें भरनी होगी। कृष्ण के वेश दुशासन घात लगाए बैठे हैं। जिनसे आशा है तुमको ईमान बेचकर बैठे हैं। लज्जाहीनों की ये सभा लाजहां न बन सकती। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब कृष्ण न आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सांद्रा। हिंदी के बारे में हम सबको मालूम है, फिर भी इस पल पर अंजलिका की कुछ बातें हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगी। मैं अंजलिका आप लोगों के सामने हिंदी भाषा के बारे में कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ। वैसे आप सब जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी एवं पढ़ी जाती है।
हिंदी भाषा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी भाषाओं के इंडो यूरोपीय परिवार की इंडो आर्यन शाखा से संबंधित है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। हिंदी और इसकी बोलियाँ संपूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। हमारे देश के कुछ राज्यों के आधिकारिक भाषा हिंदी है। कुछ हद तक पूरे भारत में आमतौर पर एक सरल रूप में समझी जाने वाली भाषा है। दरअसल भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम पर नहीं होती, बल्कि उसमें एक जीवित समाज सांस ले रहा होता है। धन्यवाद। आपको मालूम है, आज नवंबर 30 झंडा दिवस है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे तिरंगा भारत की एकता का प्रतीक है। एक वीडियो देखिए। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक ध्वज है। ये ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे भारत का ध्वज 3 रंगों से है, इसीलिए तिरंगा कहलाया है। आज मैं हमारे ध्वज के वर्तमान स्वरूप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह पहला भारतीय झंडा 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंगों की 3 पट्टियां थी। झंडे की बीच की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह तीनों रंग अलग अलग धर्मों को दर्शाते थे। इसके बाद 1917 को एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल मूवमेंट में ये झंडा फहराया गया। यह बिल्कुल अलग तरह का झंडा था। इस झंडे की ऊपर की तरफ यूनियन जैक था। झंडे में सप्तर्षि नक्षत्र, अर्धचंद्र और सितारा भी था। इसके बाद 1931 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऐतिहासिक बदलाव किया गया था। कांग्रेस कमेटी बैठक में पास हुए एक प्रस्ताव में भारत के तिरंगे को मंजूरी मिली। इस तिरंगे में केसरिया रंग ऊपर, जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद बीच में, जो कि शांति और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरे रंग की पट्टी थी, जो कि संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी पर नीले रंग का चरखा बना हुआ था, जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। और आखिर में पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने 1921 में भारतीय झंडा तैयार किया, जो सभी देशवासियों को एक साथ जोड़ सके। इसका निर्माण वेंकैया ने 1916 से ही शुरू कर दिया था। 1921 तक दुनिया के तमाम झंडों का अध्ययन किया और आखिर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस ध्वज में सफेद रंग की पट्टी पर अशोक चक्र जोड़ा। 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के लिए चुना गया। तिरंगा भारत देश की आन बान और शान है। धन्यवाद। अब समारोह का अंतिम सोपान पर आ गए हैं। अब सबको धन्यवाद करने का समय है। पहले आदरणीय शशिधरन सर और मोहनुमारी अम्मा टीचर को हिंदी मंच की सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रिय राघेंद्र जी को भी इस अवसर पर दिली मन से धन्यवाद करती हूँ। इस शुभ अवसर पर हिंदी मंच की सभी कार्यों में हमारे साथ मदद करने वाले सभी हिंदी अध्यापिकाओं को धन्यवाद दिलाने चाहती हूँ। राष्ट्रगान के साथ हिंदी मंच के उद्घाटन समारोह समाप्त करना चाहती हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण